ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ प्रॉपर्टी, लेकिन किसी के घर नूं ढाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जेकर व्यक्ति बेगुनाह निकलता है तो फिर उसके घर नूं ढा देना यह पूरी तरीके दे नाल गलत है। ते जब्त करना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 32 ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਆ ਤੇ NDPS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ साडे सहयोगी साक्षी साडे नाल चंडीगढ़ तो जुड़े हुए तो तमाम जानकारी लवांगे। साक्षी, एक बार फिर से लुधियाना में अभी देखने को मिला है जेसीबी कार्रवाई लगातार ही प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन उसी में ये अब ये पटिशन जो दायर की गई है कि पूरी तरीके से गलत है मकान को ढाना, प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, लेकिन घरों को, मकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना ये गलत है। इस पे क्या और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में नशा तस्करों के घरों पर पीला पंजा लगातार पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा। यहाँ पर एक जनहित याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर आज सुनवाई हुई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में और इस पूरे मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 25 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और याचिका दाखिल करने वाले वकील कंवर पाल सिंह ने बताया है कि इस तरह से किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कह चुका है और अब 25 मार्च को सरकार को कोर्ट में अपना जवाब दायर करना होगा, क्योंकि NDPS एक्ट के मुताबिक भी अगर देखें तो प्रॉपर्टीज को नष्ट किया जा सकता है, जो नशे की एवज में पैसा कमाया गया है उसे जब्त किया जा सकता है, लेकिन इस तरह मकानों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी यूपी में भी जब इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी तब भी इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश दायर किया हुआ है और अब पंजाब सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 25 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। 25 मार्च को ही पंजाब सरकार को इस मामले में अपना जवाब भी दायर करना होगा। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों के घरों को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आज ही हमने देखा कि मुल्लापुर की कार्रवाई को देखा जाए, लुधियाना की कार्रवाई को देखा जाए तो लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है, पीले पंजा जो है वो नशा तस्करों के घरों पर, उनके जो मकान है उन पर चलाया जा रहा है।
बिल्कुल साक्षी, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की अगर बात करें पंजाब की, तो वो कह रहे हैं कि और इससे और भी अगर नशा तस्कर के इस तरीके के मकान पाए जाएंगे जो नशा के कारोबार से बनाए गए, तो उसको हम ढाएंगे। इस पूरी तरीके से ये साफ साफ कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं वो भी लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस इस नशा रोको मुहिम को रोकने की साजिश रच रहा है। वही हाईकोर्ट में भी याचिका जो है वो दायर की गई है, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक अल्टीमेटम तय किया है कि 3 महीने के अंदर जो नशा है उसे समाप्त करना है, और इसीलिए नशे को खत्म करने की जो मुहिम है चला रही है और क्षति पहुंचाने के लिए और कांग्रेस के इंटर जो है इसे लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी कार्रवाई जो बुलडोजर कार्रवाई है उस पर स्पष्टीकरण दे रही है, उसे सही मान रही है, और कांग्रेस पर इसे रोके जाने का, इससे क्षति पहुंचाने का जो आरोप है वो सीधे तौर पर मर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਲਿਪਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟੇਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ये देखो, आज जो मामला हमने कोर्ट में लेके आए हैं वो एक सोसाइटी है हमारी, पीपल वेलफेयर सोसाइटी। उसको वो जो उसको पटिशनर बनाया हमने, आई एम रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, मेरा उनका पक्ष रख रहा हूँ। हमारा मेन इसमें ये पक्ष रहा है कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि ये हमारा जो भी पटिशन है ये बिल्कुल भी उन लोगों के खिलाफ है जो नशा बेचते हैं। ये हमारी जो पटिशन है हम उन सरकार के फेवर में है और जो है जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी फेवर में। इसमें हमने मेन पक्ष ये रखा है अपना कि जो ये काम कर रहे हैं, सरकार जो डेमोलिशंस कर रही है वो बिल्कुल जो है ठीक है, वो कर रही है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट हम इसको कह सकते हैं कि ठीक है कि क्राइम खत्म होना चाहिए पंजाब में। इसके साथ साथ हमने कोर्ट के आगे और भी पक्ष रखे हैं कि इसके साथ साथ सरकार और क्या क्या कर सकती। जैसे हमने एक चीज़ रखी है कि जो एनडीपीएस में अगर हम बात करें कि ये नशा तस्करों के खिलाफ है, तो हम एनडीपीएस की बात करते हैं तो एनडीपीएस में भी एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड है जो चाहे डेमोलिशंस नहीं कहता, पर वो ये ज़रूर कहता है कि अगर कोई नशा तस्कर की कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी कुछ भी है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वट एवर इट भी, तो वो जो है फोरफीट होनी चाहिए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके आगे और कोई डेमोलिशन का प्रोसीजर जो है वो एनडीपीएस में नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आ गई, दूसरी बात हमने इसमें ये की है कि जो सेक्शन 107 BNSS 2023 में आया था, नए कानून में आया था, वो एनडीपीएस के क्राइम को नहीं कवर करता, बल्कि सारे ही क्राइम्स जैसे कि मर्डर, रेप्स, डकैतीज, रॉबरीज, थेफ्ट, स्नैचिंग्स हम देख रहे हैं पंजाब में ये बहुत हो रहा है। ठीक है, हर दिन हम देखते हैं कि 100 से ज़्यादा क्राइम जो है रिपोर्ट होते हैं। और इसमें विक्टिम को क्या मिलता है? विक्टिम को तो यही मिलता है ना कि सरकार, पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया, FIR कर दी, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन में हमने कई देखा कि ये जो है कि कई केसेस में इवन वो पकड़े भी नहीं जाते, जो कल्प्रिट्स हैं, अक्यूज्ड हैं, वो पकड़े नहीं जाते। अगर पकड़े भी जाएं तो वो जो है अगर ट्रायल के बाद अगर वो बरी हो जाते हैं या वो कन्विक्ट हो जाते हैं, वो अलग बात है। पर विक्टिम को क्या मिला? इसमें 107 जो सेक्शन है 107 वो 2023 में BNSS में लाया गया था इसी चीज से निपटने के लिए, कि वो ये कहता है कि पुलिस कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है 107 की टू आइडेंटिफाई करो कि इट इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम, और जो DC साहब को ऑर्डर पास करो कि इसको डिक्लेयर करें प्रोसीड ऑफ क्राइम, और जो विक्टिम को जो बनती है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द विक्टिम्स, कि जो उस क्राइम से विक्टिम्स अफेक्टेड हुए हैं। थर्ड हमारी इसमें ये पक्का हमने रखा है कि मोटर व्हीकल एक्ट, कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी हम जो है क्राइम के अगेंस्ट इसको रोकने के लिए हम मोटर व्हीकल एक्ट में भी इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स। लाइक सेक्शन 19 वो ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा मोटर व्हीकल के साथ रिलेटेड है, अगर मोटर व्हीकल को यूज करता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने में, तो हम उस व्हीकल के अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं, उस बंदे के अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं, और उसमें उसका लाइसेंस RC रद्द कर सकते हैं और फोरफीट कर सकते हैं वो व्हीकल भी, क्योंकि वो व्हीकल भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अगर उसको मैं एनडीपीएस के साथ अगर जोड़ के बात करूं तो काफ़ी केसेस हम देखते हैं कि जो नशा जो है गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं या गाड़ियों में से मिलता है, तो इन दैट केसेस जो होता है वो एनडीपीएस के तहत वो व्हीकल भी एक प्रोसीड ऑफ क्राइम बन जाता है।
कि और वो व्हीकल को भी एक प्रावधान है कि हम इसको फोरफिट करें टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो अगर हमने डेमोलिशंस करनी भी है, नो डाउट हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, हम इसके डेमोलिशंस के अगेंस्ट हमारी पिटीशन बिल्कुल भी नहीं है।